So once again, welcome everyone in today's guest lecture. Okay, I am Atul Grover. I am working with Virtusa Consulting in Pune. I am working as a architect for ServiceNow. It is a tool in the market. I am using that tool to provide services to my customers or my clients as well. Okay. Today's session is not about ServiceNow and neither about me or neither about you. Today's session is basically to guide you if tomorrow you want to go into the market in the IT industry and you want that, okay, Atul, what we should know to get some good job in the market. For that, I am going to be share my views with you now. Okay, so I prepared one presentation on the same overview about our technological terms, or I can say the technicals or the technology which we are going to be you can use in your day-to-day life, you can use to build up your career. Hope everybody is able to see my screen, right? Just confirm. Everybody is able to see? Oh, I guess I did not share it, sorry. No, sir, you have Okay, not. yes, let me share. Reshma, it is disabled for me. Can you enable the screen sharing for me? Now you can see. Okay. Yes, now I can share. Okay. Okay. So I'm here with the same things. Maybe definitely your teachers also telling you, guys, थोड़ा पढ़ लो, थोड़ा सीख लो, एक job मिल जाएगी अच्छी. It will be good for you and all the things will be there. Okay. So in the next half an hour to 1 hour we are going to be discuss about these things कि आज मार्केट में कौन से टेक्नोलॉजीज काम कर रहे हैं आईटी में. If you join any organization, what they expect from you and what are the qualities you check before hiring any candidate. मानते हैं we all agree that you are fresher, you don't have much knowledge in any of the technology, but that is also not correct thing. Is that basically I can say you know the things but you don't know the end-to-end stuff in that particular area. Okay, and in today's session, in today's knowledge sharing session, I am going to tell about few technologies which are available in market. It is up to you that what you want to learn, how you want to build your career in that particular area. Okay, I will be in the screen sharing mode, so I cannot see your question answer, but maybe I can request Reshma. Just keep a track on the chat window if anyone put any question, or in case you have any doubt, any question, you can put into the unmute yourself and you can ask to me. Okay. Yeah. So now the first thing comes that, sir, we are the freshers. What type of role we can be get into the IT industry? So I try to put some roles as per my understanding, and these are not the limited roles. There are a lot of roles are available. But these are the little bit on the high level perspective. Jैसे you can become a developer, that is called the application programmer. You can go for the testing. You can become a functional consultant, like this role I am playing, business process or the business analyst. You can become the architect. Architect basically, like if you see, if you want to build a home, आप किसी आर्किटेक्ट के पास जाते हैं, वो क्या करता है, आपके लिए पूरे घर का एक नक्शा बना के देता है. यहाँ पर वॉशरूम होगा, यहाँ पर रूम होगा, यहाँ पर लॉबी होगी, यहाँ पर आपका गैरेज होगा, यहाँ पे स्विमिंग पूल होगा, यहाँ पे गार्डन होगा. सो इट इज नॉट नेसेसरी कि वो कोड भी करेगा आपके लिए, बट वो आपको एक हाई लेवल डिजाइन बना के देता है कि हाँ भाई ये आपका घर ऐसे बनना चाहिए. ठीक है, दैट इज द वन थिंग. इसके बाद एसएमई, बेसिकली एसएमईज क्या होते हैं, सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट. सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट बोले तो कोई भी पर्सन जो किसी मैटर में एक्सपर्ट है. जैसे मान लीजिए मेरे को चाय बनाना सीखना है. ठीक है, कई बार कहते हैं ना कि नहीं, अगर चाय पीनी है ना तो उसकी जाके पियो, उसको पता है कैसे चाय बढ़िया चाय बनती है. तो वो क्या है, वो मेरा एसएमई है उस टॉपिक में. उससे पूछ सकता हूँ कि भाई ये नहीं हो रहा है, ऐसे नहीं हो रहा है, वैसे नहीं हो रहा, तो क्या करना चाहिए. सपोर्ट इंजीनियर आप बन सकते हैं, और लास्ट में क्वालिटी रोल्स रहते हैं. ये लिमिटेड नहीं है, मैं पहले बता रहा हूँ, ये रोल्स लिमिटेड नहीं है. You will get a more opportunity in the market, but
if you are good in technical part, I'll say you can go for this role. Try for the application programmer or the developer role in the industry. ठीक है, किसी को कोई डाउट यहाँ तक, कोई क्वेश्चन हो किसी का, कोई क्वेरी हो कि नहीं सर मजा नहीं आ रहा, पता नहीं क्या बता रहे हो आप, कुछ ऐसा किसी के मन में चल रहा हो? बताओ भाई. ओके. आज के टाइम में ये कुछ ऐसे मेजर टूल्स हैं, मेजर टेक्नोलॉजीज हैं, मेजर टर्म्स हैं जो मार्केट में बहुत चल रही हैं. ऑटोमेशन आपने सुना होगा, सब कहते हैं अरे ऑटोमेशन कर दो, अरे ऑटोमेशन कर दो. आपने मान लीजिए आपने एक फ्लैट लेना है, आप किसी बिल्डर के पास जाते हो, वो बोलता है सर दिस इज योर स्मार्ट होम. क्या मतलब स्मार्ट होम का? स्मार्ट होम का मतलब इतना है कि आपको अब लाइट्स ऑन करने के लिए बटन को प्रेस नहीं करना पड़ेगा, आप लाइट्स अपने फोन से भी ऑन कर सकते हो. ये स्मार्टफोन है, सॉरी स्मार्ट होम है. डेटा साइंस, जितना भी डेटा हमारे पास आता है, ठीक है, जितना भी डेटा हमारे पास है उसको एनालाइज करने के लिए हम डेटा साइंस यूज करते हैं. मान लीजिए मुझे 1 लाख स्टूडेंट्स का डेटा एनालाइज करना है कि 1 लाख स्टूडेंट्स में से कितने लोगों का इंटरेस्ट क्या है, कौन कितना पढ़ाई में अच्छा है, वो सब चीजें. तो वो मैं एक एक स्टूडेंट को का रिकॉर्ड नहीं ओपन कर सकता, तो उसके लिए मैं डेटा साइंस यूज करता हूँ. यहाँ पे हम कुछ लॉजिक्स लिखते हैं, कुछ डिटेल लिखते हैं और उसके बेसिस पर हम अपना ये चीजें कवर अप करते हैं. एंगुलर जेएस कंप्लीटली प्रोग्रामिंग में अगर आपको काम करना है तो आपको एंगुलर जेएस सीखना पड़ेगा. बीएमसी रेमेडी एक टूल है आईटीएल का, आईटीएसएम का, जो आप यूज कर सकते हो. आरपीए रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन, सिंपल है, सुनने में बहुत इजी है, इट इज इजी. आरपीए मीन्स किसी को आपने बोला, रोबोट को बोला, आपका काम हो गया. लाइक मैं आपको एग्जांपल देता हूं, जैसे एलेक्सा है या गूगल है या सीरी है. व्हाट यू से, एलेक्सा प्लीज प्ले द सॉन्ग. एलेक्सा क्या है, वो एआई के बेस पर काम करती है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बेस पर काम करती है. उसके पीछे कुछ फीड किया गया है, वो आपके वर्ड्स को सुनती है, समझती है, सर्च करती है और आपको रिजल्ट ला के देती है. तो ये भी हम थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करेंगे. पाइथन अगेन बहुत बढ़िया और अच्छी लैंग्वेज अभी चल रही है. सेल्स फोर्स, सर्विस नाउ, ये टूल्स हैं, दो अलग अलग पर्पस के लिए होते हैं. जेंकिन शेफ, मतलब कि सारे के सारे टूल्स हैं. आई विल जस्ट गाइड यू, आई विल जस्ट टेल यू कि किसमें क्या काम हो सकता है, आपको किसमें करियर बनाना है. ये टोटली आपकी चॉइस है, ये मेरी चॉइस नहीं, ये टोटल आपकी चॉइस है कि मुझे इसमें करियर बनाना है या मुझे ये काम पूरा करना है. मैं जस्ट आपको गाइड करूंगा अगले आधे घंटे के लिए कि हाँ भाई किस टेक्नोलॉजी में क्या क्या काम होता है. ठीक है, किसी को कोई डाउट क्वेश्चन यहां तक? एनीबडी? बताइए. नो सर, नो डाउट. और कोई, या सिर्फ एक ही स्टूडेंट बोल रहा है, बाकी लोग सो गए क्या? नो सर. ठीक है. ठीक, अब बात करते हैं डेवऑप्स की. डेवऑप्स बेसिकली क्या है? अगर मैं बोलूं तो डेवऑप्स एक मेथोडोलॉजी है, एक फ्रेमवर्क है काम करने का. लेकिन ये फ्रेमवर्क अपने आप काम नहीं करता, इसको काम करने के लिए कुछ टूल चाहिए होते हैं. ठीक है, और वो टूल्स मेरे यहां पर काम करते हैं. डेवऑप्स में एक कंसेप्ट आता है जिसे हम कहते हैं CI/CD, कॉन्टिन्यूअस, व्हाट आई कैन से, इंप्रूवमेंट, कॉन्टिन्यूअस डेवलपमेंट. ओके, CI/CD के नाम से चलता है मेरा. इसमें बेसिकली क्या रहता है डेवऑप्स में, जो आप ये देख रहे हैं, ये सारे के सारे टूल्स हैं, सारे के सारे टूल्स हैं. ये आप 2-3 टूल्स सीख सकते हैं. जैसे कोड लिखना है, अगर आपको कोड पता है, आपको कोड है आपके पास, आपको उसको कहीं डालना है, सेव करना है, तो ये मेरा रिपोजिटरी हो सकता है. डिप्लॉय क्या करना है कि भाई एक जगह से उठा के दूसरी जगह पे कोड लेके जाना है,
वो मेरा डिप्लॉय होता है, उसके लिए ये टूल्स यूज होते हैं। डॉकर है, AWS है। आपको ऑपरेट करना है, उसको बार बार चेक करते रहना कि सही काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो ये 3 टूल हैं, शेफ, एनसिबल और क्यूबिनेट्स। मॉनिटर, उसके ऊपर ट्रैक रखना कि उसके सारे कोड सही चल रहे हैं, कोई एरर तो नहीं आ रहा, तो ये टूल हम यूज कर सकते हैं। यहाँ पर रिलीज करना, उसको नेक्स्ट लेवल पे ले जाके डिप्लॉय करना और यूजर्स को बोलना लो अब आप यूज करो, तो ये टूल्स हमारे यूज होते हैं। एंड टेस्ट करने के लिए JUnit और SC, और बिल्ड करने के लिए Memento और SBT। इन शॉर्ट अगर मैं DevOps की बात करूं, आजकल मार्केट में क्या रिक्वायरमेंट है, इफ यू सी इन द मार्केट, इफ यू सी एनी Naukri.com और काइंड ऑफ थिंग्स, they need a full stack developer. Full stack developer means the person who know each and everything in this cycle. जिसे पता हो कि कोड कैसे करना है, जिसे पता हो कि डिप्लॉय कैसे करना है, जिसे पता हो कि ऑपरेट कैसे करना है, जिसे पता हो कि मॉनिटर कैसे करना है। ये इसका लाइफ साइकिल है। पहले प्लान होता है, फिर कोड लिखा जाता है, फिर उस मान लीजिए अब प्लान मतलब कि मुझे एक वेबसाइट बिल्ड करनी है, मैंने प्लान किया। कोड मतलब कि भाई मैंने एक को बोला कि तुम पहला फ्रंट पेज बनाओगे, दूसरे को बोला तुम पासवर्ड का लॉजिक लिखोगे। जब ये दोनों लिखे गए, इन सबको कंबाइन करना इज कॉल्ड द बिल्ड हियर। अलग अलग कंपोनेंट्स को आप एक जगह लेके आते हो, उसको बिल्ड कहते हैं। फिर उसको आप टेस्ट करते हो कि भाई सही काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, और उसके बाद आपको आप उसको रिलीज करते हो अपने कस्टमर्स के लिए। कस्टमर यहाँ पे टेस्ट करता है, हाँ भाई सब सही है, और फिर आप उसको फाइनली अपने एंड यूजर्स के लिए डिप्लॉय कर देते हो कि भाई अब मार्केट में सबको मिलेगा। ये ऑपरेट करते हो कि उसमें कुछ एरर तो नहीं आ रही, कुछ प्रॉब्लम तो नहीं आ रही, उसको मॉनिटर करते हो। सेम चीज लॉगिंग्स वगैरह के लिए कोई इशू है, कोई कोड फट रहा है, किसी ने प्रॉब्लम रेज किया है, तो सब चीजें यहाँ पर होती है। लेकिन इन शॉर्ट अगर मैं बात करूं तो डेवऑप्स का जो साइकिल है वो यहां से यहां तक रहता है। और आज के टाइम में इन द करंट सिनेरियो द डिमांड इज लाइक एवरीबडी शुड नो एटलीस्ट 1 or 2 टूल्स ऑफ ईच ऑफ द सेक्शन। ये तो सिर्फ मैंने एक पिक्चर दिखाया है, इसके अलावा कोड में ही बहुत सारे टूल होंगे, डिप्लॉय में भी बहुत सारे टूल होंगे, ऑपरेट में बहुत सारे टूल होंगे। ठीक है, तो अगर आप टेक्निकली स्ट्रांग हैं तो आई रिकमेंड कि आप डेवऑप्स का स्ट्रीम पिकअप कर सकते हैं। आप पढ़िए डेवऑप्स को, आप इसको पढ़ सकते हैं कि हाँ भाई कैसे काम करता है डेवऑप्स मार्केट में, इसके कोर्सेज कौन कौन से हैं, देन यू कैन गो फॉर द अपडेट ऑन दैट पार्ट और लर्निंग ऑन दैट पार्ट। यहां तक किसी कोई इश्यू, कोई क्लैरिफिकेशन? Sir, Vijay is asking one question. हाँ विजय बताओ। बोलते सॉरी, He is asking that ये पूरे cycle क्या बोलते इसको? इस पूरे को हम डेवऑप्स बोलते हैं, इस पूरे साइकिल को डेवऑप्स। ये देखो, डेव एंड ऑप्स, डेवलपमेंट एंड ऑपरेशंस। ओके सर। ठीक है, तो वो चीज, तो आप डेवऑप्स में अपना करियर बिल्ड कर सकते हैं। मतलब कि कहने की बात यह है कि अगर आप टेक्निकली स्ट्रांग है, क्योंकि यहाँ पर पूरा काम टेक्निकल है, यहाँ पर ऐसा नहीं कि आप बातें करके अपना काम चलाओगे, नहीं, यहाँ पर आपको कोड लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो वो चीजें हैं। हाँ, अब बारी आता है डेटा साइंस की। डेटा साइंस क्या है? बेसिकली मेरा डेटा साइंस है कि भाई मेरे पास बहुत सारा डेटा पड़ा हुआ है। ठीक है, मान लीजिए मैंने विजय और जागृति को 5 लाख रिकॉर्ड दे दिए। ठीक है, मैंने कहा जाओ और इसको एनालाइज करके लेके आओ। सर 5 लाख रिकॉर्ड नहीं होंगे एनालाइज, क्या मैं 5 लाख रिकॉर्ड ओपन करके देखूंगा? नहीं, वो पॉसिबल नहीं होता। ठीक है, तो सबसे पहले बात आती है कि इसकी नीड क्या है, मुझे डाटा एनालाइज क्यों करना है, ये यहां से शुरू होता है। वाई? देखो, आप अपने घर में कोई चीज, मान लीजिए आप अपने घर में नई बाइक लेके आए। ठीक है, आप क्यों बाइक लेकर आए? उसके रीजंस होंगे। मैं बड़ा हो गया हूं, मुझे कॉलेज जाना होता है, घर का काम करना होता है, मम्मी को हेल्प हो जाएगी, दीदी को हेल्प हो जाएगी। तो ये क्या है? ये मेरे सारे वाइज हैं कि मुझे क्यों करना है। उसके बाद आप क्या करते हो? उसके बाद आप डेटा इकट्ठा करते हो अपने पापा से बात करने के लिए। अब पापा को बोलना पड़ेगा भाई पापा मुझे बाइक चाहिए, तो आप बोलोगे, वो बोलेंगे भाई क्यों चाहिए, तो आप ये सारे रीजंस वहां लिखोगे कि भाई मुझे डाटा को आप इकट्ठे करोगे। मम्मी से पूछो, मम्मी आपको लगता है कि बाइक चाहिए, दीदी आपको लगता है कि बाइक चाहिए, हमारे घर में बाइक होनी चाहिए। तो वो क्या है कि आपने डाटा को एक्वायर किया।
यहाँ पर डाटा को इकट्ठा किया, उसके बाद डाटा को क्लीन किया। अब किसी ने बोला नहीं अगर बाइक मिल जाएगी तो तुम तो टपरे भी मारोगे, तो आपने क्या किया, उसको क्लीन कर दिया। नहीं नहीं, ये पॉइंट पापा को बताऊंगा तो बाइक नहीं मिलेगी। बी प्रैक्टिकल, राइट? तो आपने क्या किया, अपने डाटा को क्लीन करना शुरू कर दिया। सिर्फ वही पॉइंट बताऊंगा जो मुझे चाहिए। तो आपने क्लीन किया और उसको ट्रांसफॉर्म करके पापा को बोला, पापा हमें बाइक चाहिए घर में, क्योंकि अब मैं बड़ा हो गया हूं, मुझे कॉलेज जाना होता है, मम्मी के सामान होता है, दीदी को छोड़ना होता है, तो मुझे बाइक चाहिए। आपने ट्रांसफॉर्म कर दिया उस डेटा को, ठीक है? और उसके बाद आपके पास एक डिसीजन लेने का पावर आ गया। मतलब आपके फादर को एक डिसीजन लेने के लिए कुछ इनपुट्स मिल गए कि हाँ भाई बात तो सही है, लड़का बड़ा हो गया है, हाँ भाई बात तो सही है, अब उसको घर में बाइक भी चाहिए। तो उन्होंने क्या किया, यहाँ पे डिसीजन लेने का स्टार्ट किया। हो सकता है कि इस डिसीजन को बाकी फैक्टर भी इम्पैक्ट करेंगे कि भाई पैसे नहीं है, अभी लोन पे लेना पड़ेगा, किसी से पैसे उधार लेने पड़ेंगे, वो सब चीजें। उसके बाद उन्होंने विजुलाइज करके देखा कि अगर मैं बाइक लेके देता हूं इसको तो कितना फायदा होगा, क्या ये टाइम पे काम कर पाएगा, सारा सामान लेके आ पाएगा। तो वो क्या, विजुलाइज करना शुरू किया। मैंने विजुलाइज किया, मुझे लगा हाँ नहीं, मेरा जो आउटकम है वो मुझे अचीव हो रहा है, और फिर मैंने उसको डाटा को डिप्लॉय करके उसको बाइक लेके दिया। ये मेरा डेटा साइंस का एक लाइफ साइकिल रहता है, कंप्लीट पूरा का पूरा लाइफ साइकिल रहता है। द वे वी डिस्कस इज नॉट द वे दैट आईटी वर्क। ऐसा नहीं होता आईटी में। ये तो मैंने सिर्फ एक एग्जांपल दिया, वहां पर तो लाखों में रिकॉर्ड्स होते हैं, मिलियन बिलियन रिकॉर्ड्स आपके पास एक साथ दिए जाते हैं। चलो भाई एनालाइज करो, इसमें से आउटपुट निकाल के दो कि किस तरह का डेटा मेरे को काम आ सकता है। जो ये था अंबानी ने, जो जब जियो लॉन्च किया, उसने क्या किया होगा, उसने पहले देखा कि इंडिया में कितनी पॉपुलेशन है जो इंटरनेट यूज करती है। उसने एक डेटा गैदर किया। उसके बाद उसने देखा कि उसमें से कितने लोग हैं जो डेली यूज करते हैं, उसने वो डेटा निकाला। कितने लोग हैं जो स्टूडेंट्स हैं, तो देखो उसने करोड़ों की संख्या में से एक प्लान निकाल के एक डेटा निकाला, और उसके लिए उसने एक जियो फोन लॉन्च किया, और आज वो क्या कर रहा है। ठीक है, इसका थोड़ा सा लाइफ साइकिल और अगर डिटेल में देखेंगे तो यहां पर आपको मिल जाएगा। डेटा एक्विजिशन होता है, एनालाइज होता है, विजुलाइज होता है और डिप्लॉय होता है। ये इसका पूरा का पूरा प्रोसेस है। मतलब कि डाटा पहले आप कैप्चर करते हो, बाइक लेनी है तो उसका पूरा डाटा कैप्चर करोगे आप, मुझे क्यों चाहिए, कैसे चाहिए, कब चाहिए, कितने की चाहिए, वो सब। उसके बाद आप उसको प्रोसेस करते हो, पापा को कैसे बताना है। डाटा माइनिंग इज अ गुड टर्म। डाटा माइनिंग क्या होता है कि जैसे आपने सुना होगा बिटकॉइन जो होते हैं, हम वो भी डिस्कस करेंगे। बिटकॉइन क्या था कि वो डेटा माइनिंग से बनता है। आई डोंट नो द एंड टू एंड प्रोसेस, लेकिन ये सुना था कि ये डेटा माइनिंग से बनता है। ठीक है, तो डेटा माइनिंग क्या है कि जब आप किसी डेटा में खोजबीन करते हो, उसमें से कुछ इंफॉर्मेशन निकालते हो और इस इंफॉर्मेशन को नॉलेज में कन्वर्ट करते हो, दैट इज बिकम द डेटा माइनिंग। जो आपने अपने दोस्तों से पूछा भाई बाइक चाहिए, क्या रीजन है, आपने उसको माइनिंग किया, आपने उसको क्लासिफाई किया, आपने उसको समराइज किया कि भाई ये सब रीजन है। उसके बाद आपने उसको एनालाइज करके अपने फादर साहब को दिया कि भाई देखो ये पॉइंट्स है मेरे एनालाइज करने के बाद, और उन्होंने उसको कम्युनिकेट किया, विजुलाइज किया, रिपोर्ट किया, और फाइनली उन्होंने बोला यस लेट्स गो हेड फॉर द डिप्लॉयमेंट पार्ट। तो ये मेरा डेटा साइंस का एक लाइफ साइकिल है। इसमें भी कोडिंग लगती है, इसमें एक लैंग्वेज होती है आर, वो यूज होती है डेटा साइंस में स्पेसिफिकली। पाइथन और आर शायद दोनों लगती हैं, क्योंकि इतना डेटा आप मैन्युअली नहीं समझ सकते, विजुलाइज नहीं कर सकते आप, राइट? तो उस चीज के लिए हमें क्या करना पड़ा, हमने कुछ कोड लिखते हैं और उसके बाद उस कोड से डाटा को एनालाइज करते हैं। किसी कोई डाउट, कोई क्वेश्चन यहां तक बताइए। बताइए, कोई डाउट, कोई क्वेश्चन? अरे हाँ यार, तो बोलो यार, मुझे लग रहा है मैं ही बातें कर रहा हूँ। नो सर। No, sir. ओके, नो सर। ऑल गुड देन, ठीक है, Yes, sir. गुड, ओके। अब बारी आती है आरपीए की। आरपीए अगर आप देखोगे तो बहुत इजी है।
रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन। आपने कभी नोट किया कि मान लीजिए आपने किसी को कॉल किया, किसी बैंक को कॉल किया या किसी एयरलाइंस को कॉल किया। जब आप कॉल करते हैं वहां से एक आवाज आती है, थैंक यू फॉर डायलिंग दिस नंबर, प्रेस 1, प्रेस 2, प्रेस 3, प्रेस 4, प्रेस 5। आप उसके हिसाब से अपने ऑप्शंस को प्रेस करते हैं एंड देन यू प्रोसीड फर्दर। तो अगर देखा जाए, किसी का कोई क्वेश्चन है क्या? मेरे पास आ रहा था, ठीक है, अगर हो तो बहुत पूछ लेना। तो अगर देखा जाए तो वो क्या है, वो काइंड ऑफ रोबोटिक्स है। मैंने पीछे से फीड कर दिया उसको और उसने, जैसे ही कोई यूजर आया उसने उसको बोला और वहां से बात हुई, और क्या कहते हैं, वहां से बात हुई और उसने अपना ऑप्शन दिया। तो अगर आप यहां पे देखेंगे, किसी भी चीज को ऑटोमेट करने का तरीका, आई कैन से इट इज ए ऑटोमेशन। लेकिन अगर उसमें आप रोबोट वर्ड को ऐड कर देते हो, दैट इज कॉल्ड द रोबोटिक। ठीक है, रोबोटिक मतलब कि आपको कुछ, अगेन यहां पर भी आपका कोडिंग रहता है, लेकिन यहां पे बेनिफिट ये है कि आप आरपीए के एडमिन या आरपीए के आर्किटेक्ट बन सकते हो कि भाई ये कैसे ऑटोमेट होगा। जरूरी नहीं है कि आपको कोड लिखना पड़े, ठीक है, लेकिन बैकग्राउंड में काम हो सकता है। तो इसलिए देखो यहां पर 3 चीजें हैं, रोबोटिक, प्रोसेस और ऑटोमेशन। प्रोसेस मतलब कि जो काम मैं रोज कर रहा हूं वो मेरा प्रोसेस है, उसको ऑटोमेट करना किसी रोबोटिक के थ्रू इज कॉल्ड द रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन। अच्छा टर्म है, मार्केट में चल रहा है, बट आप इसमें से या तो रोबोटिक या ऑटोमेशन दोनों में से कुछ भी पिकअप कर सकते हो अपने करियर के लिए। जैसे एग्जांपल देते हैं, पहले क्या था कि भाई मान लो आपकी कंपनी में ऑनबोर्डिंग है या आपके स्कूल में या कॉलेज में नए स्टूडेंट्स आते हैं, मैडम सबके फॉर्म लेती थी, चेक करती थी, भरती थी, फीस हो गई कि नहीं हो गया, सब कुछ होता था। 50 बच्चों ने एडमिशन लिया तो 50 फॉर्म उनको मैन्युअली चेक करने पड़ते थे। उन्होंने बोला सर ये नहीं, काम नहीं होगा। नहीं, कल आज 50 है, कल अगर 500 हो जाएंगे तो हम क्या करेंगे? ठीक है, तो वो चीजें, ठीक है भाई, ओके, फिर क्या किया जाए? ठीक है, एक काम करते हैं, इसको सारे को ऑटोमेट कर देते हैं। ऑटोमेट मतलब कि हम मैनुअल फॉर्म ही बंद कर देते हैं। हम एक गूगल फॉर्म बनाते हैं, वहीं पर सबको बोलेंगे अपना डेटा डालो और वहीं पर हम वैलिडेशन लगा देंगे, और जैसे ही आप फीस सबमिट करोगे आपके पास एक ईमेल आ जाएगा, आपके पास यूजर आईडी पासवर्ड आ जाएगा, आपके पास बाकी डिटेल्स आ जाएंगी कि हाँ भाई आपको बाकी काम कैसे करना है। ठीक है, तो वो क्या हुआ, मेरा वो प्रोसेस ऑटोमेशन हो गया। अब देखो, जब हम कंपनी ज्वाइन करते हैं ना, तो एक दिन में बहुत सारे लोग ज्वाइन करते हैं कंपनी। ऐसा नहीं कि सिर्फ 1 या 2 लोगों ने ज्वाइन किया, नहीं, ऐसा नहीं होता। बहुत सारे लोग कंपनी ज्वाइन करते हैं एक साथ। तो अब अगर एचआर सबके लिए डेटा बनाने लग जाए तो उसका तो पूरा काम इसी में निकल जाएगा। तो उसने क्या किया, उसने उसको ऑटोमेट कर दिया कि जैसे ही मेरा एक एम्प्लॉय ऑनबोर्ड हो जाएगा, उसके फॉर्म सबमिट हो जाएंगे, मैं एक रिक्वेस्ट रेज करूंगी जहां से उसका ईमेल आईडी अपने आप बन जाएगा, उसको एडिशन हो जाएगा मेलिंग में, उसके लिए एक फोन नंबर जनरेट हो जाएगा, उसको एक एक्सेस कार्ड मिल जाएगा, उसका अकाउंट बन जाएगा और उसके पास सारी इन्फॉर्मेशन चली जाएगी भाई उसको कहां पर कैसे लॉग इन करना है। यही काम एचआर्स पहले एक एक करके करते थे, लेकिन अब वो सारा कुछ ऑटोमेट हो गया। एक बार क्लिक करो बटन पे, सारा काम अपने आप हो जाएगा, आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दैट इज कॉल्ड द ऑटोमेशन। मार्केट में बहुत स्कोप है इसका आजकल, हर कोई पूछता है कि मुझे ऑटोमेट करना है। अब एग्जांपल देना, जैसे पहले जब स्कूटर्स आते थे वो किक वाले थे, लेकिन अब क्या आता है, सेल्फ स्टार्ट। सेल्फ स्टार्ट क्या है? सेल्फ स्टार्ट भी वही है जो आप किक से काम करते हो। किक से आप उसको शॉर्ट देते हो तो वो ऑन होता है, सेल्फ स्टार्ट से आप बटन प्रेस करते हो, बैटरी से करंट लेता है और ऑन होता है। तो ये क्या है, ये ऑटोमेशन का एक अच्छा एग्जांपल है। लेकिन यहां पर ऑटोमेशन किसके लिए करते हैं, जो काम बार बार आप कर रहे हो, रेपिटेटिव काम। देखो ये देखो, रेपिटेटिव टास्क, यही चीज, यही 10 स्टेप एक एचआर को 15 एम्प्लॉइज के लिए भी करने हैं, 50 के लिए भी करने हैं, तो उसको तो बहुत बोरिंग काम हो जाएगा। तो इन चीजों को ऑटोमेट करने का हम प्रोसेस कहते हैं प्रोसेस ऑटोमेशन। क्लियर? एनी डाउट, एनी क्वेश्चन हियर? सर मेरा एक डाउट है यहाँ पे।
AI और RPA में कुछ फर्क है क्या, या सेम ही है दोनों? क्या चीज? आरपी और एआई में? हाँ। नहीं, एआई अलग है। एआई क्या है? बेसिकली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। आप उसको जितना बढ़ाओगे वो उतना बढ़ता जाएगा। ठीक है। एक्चुअली में अगर देखा जाए ना, एआई, मशीन लर्निंग, आरपीए, ऑटोमेशन, ये सारे के सारे एक दूसरे के साथ हाथ मिला के काम करते हैं। आरपीए में भी एआई यूज होता है कहीं ना कहीं, और एआई में भी कहीं ना कहीं आरपीए यूज होता है। तो अलग, मैं अगर आप टर्म्स के हिसाब से बात करोगे, यस, ये दोनों बहुत अलग अलग हैं, बिल्कुल अलग अलग हैं। लेकिन कहीं ना ओके कहीं सर। ये कहीं ना कहीं ये टेक्नोलॉजीज आपस में मिलके भी काम करती हैं। अब जैसे देखो, एलेक्सा है। एलेक्सा को कहते हैं कि ये एआई का टूल है, ठीक है। लेकिन अगर मैं बात करूं तो ये ऑटोमेशन भी है। आप बोलते हो एलेक्सा प्लीज कॉल टू माय फादर, तो कॉल कर देती है। एलेक्सा प्लीज स्विच ऑन द लाइट्स, वो ऑन कर देती है। तो क्या है, जो काम आप बार बार कर रहे हो उसको ऑटोमेट भी तो कर रहे हो। आप बोलते हो एलेक्सा सेट द अलार्म फॉर 10 o'clock एवरी डे, वो आपके लिए रोज का काम करके छोड़ देती है। अर्ली मॉर्निंग 7 o'clock प्लीज प्ले द सॉन्ग, ऑटोमेशन है, लेकिन वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज करके ऑटोमेशन कर रहे हैं। ठीक है। इसमें कहीं ना कहीं डेटा साइंस भी है पीछे। देखो, एलेक्सा कोई 1 या 2 दिन में नहीं बनी। एलेक्सा को बनाने में टाइम लगा, और उस टाइम के लिए उन्होंने डेटा भी इकट्ठा किया होगा। अब अगर आप देखो, जैसे आजकल सुनते हैं, आप फेसबुक पे, आप मान लीजिए कुछ आप सर्च कर रहे हैं, आप फ्लाइट सर्च कर रहे हैं, आप टीवी सर्च कर रहे हैं, मोबाइल फोन सर्च कर रहे हैं। ऐसा क्या होता है कि जैसे आप वो सर्च बंद करते हैं और कोई भी सोशल मीडिया साइट ओपन करते हैं, आपके पास उसकी ऐड आनी शुरू हो जाती है। होता है ना ऐसा, सोमनाथ? यस सर, यस वो क्या है? वो डेटा आपका ले रहे हैं, उस डेटा को एनालाइज करेंगे और उसके बाद उसी के बेस पर आपके लिए वो चीजें प्रेजेंट करना शुरू कर देते हैं। ठीक है। ओके सर। ठीक। अब बात हम करते हैं बेसिकली, कहाँ गया इसका टॉपिक, कहाँ गया? एआई। लो, आपका टॉपिक आ भी गया एआई का। एआई बेसिकली, जैसे हमने बात की, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, खुद का दिमाग नहीं है। जो हमने बोला वो काम उसको करना। और उसका बेस्ट एग्जांपल जैसे हम शुरू से डिस्कस कर रहे हैं, सीरी, नेटफ्लिक्स, इको, एलेक्सा, ये सारे क्या है? ये एआई के बेस्ड पर है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बेस पर है। मुझे याद है कि आज से तकरीबन कितने 2002 की बात है, 21 साल पहले, जब मैं 10th क्लास में था अप्रोक्सीमेटली, हाँ, तब मैंने एक साइंस एग्जीबिशन में पार्टिसिपेट किया था। वहां पर हमने क्या बनाया था? ऑटोमेटेड लाइट सिस्टम। उसमें क्या था कि एक साइंस का कुछ कंपोनेंट था, मैं तो उसका नाम भी भूल गया। जैसे ही उसके ऊपर आप अंधेरा करोगे, वो लाइट्स ऑन कर देगा अपने आप। ठीक है। और वही चीजें आज के टाइम में हम एआई से यूज करते हैं। आप अपने फोन में चेक करो, आपके फोन में एक सेटिंग होती है, डार्क मोड और द नाइट मोड करके, डार्क मोड नाइट मोड करके होती है। वो क्या है कि जैसे ही आपकी घड़ी में 6 बजते हैं, वो सोचते हैं कि सनसेट हो गया। या अगर आपके मोबाइल फोन में वेदर आपने अप टू डेट किया हुआ है, तो जैसे ही सनसेट होता है उसको लगता है कि नहीं, रात हो गई है, इनको पढ़ने में दिक्कत होगी, लेट मी स्विच ऑन द डार्क मोड। हाँ या ना? यस सर। राइट। तो वो क्या है? वो मेरा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है सारा का सारा। वो डेटा ले रहा है मेरे पीछे से और वही चीज मुझे करके दे रहा है। ठीक है। तो एआई इज ऑल्सो गुड, लेकिन अगेन मैं रिपीट करूंगा, एआई, डेटा साइंस, आरपीए, ऑटोमेशन, ये सारे मिलके काम करते हैं आपस में। ऐसा नहीं है कि ये चार, आपने एआई सीख लिया तो बस आपको कुछ और नहीं चाहिए। नहीं, अगर आपने एआई सीख लिया तो आपको बाकी चीजें भी सीखनी पड़ेंगी साथ में। ठीक है। और एआई में बेसिकली जितना आप उसको देखो, रोबोट्स क्या होते हैं? रोबोट्स को मैं सिखाता हूं कि क्या काम करना है और वो काम करते हैं। तो जितना आप उसको बनाओगे, इसके लिए यहाँ पे कहते हैं कॉग्निटिव। वो एक्चुअली नहीं है, वो आपके यहाँ पे कॉग्निटिव फंक्शन की तरह काम करता है। आप उसको समझाओ, उसको बताओ, वो काम करेगा। एक मूवी आई थी रजनीकांत की, रोबोट करके, जिसमें उसने एक रोबोट बनाया और वो बहुत इंटेलिजेंट था। वो क्या था? दैट इज एग्जाम्पल ऑफ द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ओनली। वो सेकंड्स के अंदर पूरी डायरेक्टरीज को पढ़ लेता था, बुक्स को पढ़ लेता था। ठीक है। तो ये मेरा एआई का एग्जाम्पल था। अब बारी आती है इंटरनेट ऑफ थिंग्स। 6 मिनट के बाद ये सेशन डिस्कनेक्ट हो जाएगा, तो प्लीज अगेन इसी लिंक को कनेक्ट करके दोबारा से ज्वाइन करना। ठीक है। तो हम उस पर आगे डिस्कस करेंगे। अब देखो, एक चीज और आ गई, आईओटी।
इंटरनेट ऑफ थिंग्स, सिंपल। अब आप बोलोगे सर आप तो वही चीज बता रहे हो, क्योंकि वही चीज एग्जिस्ट करती है। जो स्मार्ट होम का कंसेप्ट है वो क्या है, वो आईओटी का ही एक बेस है। अगर आपने अपने फोन पे कुछ वीडियो चलाया हुआ है और आप उसको अपने टीवी पर कास्ट करना चाहते हैं, तो उसके लिए क्या रिक्वायरमेंट है कि आपका फोन और आपका टीवी दोनों सेम इंटरनेट कनेक्शन पे होने चाहिए, राइट। तो वो क्या एग्जांपल है, वो आईओटी है। मतलब आईओटी क्या करता है कि आपको अगर बाइंडिंग करके, अगर आपको दो डिवाइसेस को जोड़ना है तो आपको ब्लूटूथ ऑन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप उन सभी डिवाइसेस को एक कॉमन ब्रॉडबैंड पे या एक कॉमन कनेक्शन पे ले आओ, मैं वहां से सारा काम कर दूंगा। एग्जाम्पल ट्राई करके देखो। आप अपने फोन पे, अपने फोन को रखो आप अपने मोबाइल डेटा पे और अपने टीवी को ऐड करो आप इंटरनेट ब्रॉडबैंड पे, आप कास्ट करो, वो नहीं होगा कास्ट, क्योंकि उनके बीच में कुछ कॉमन नहीं है। जैसे ही आप दोनों को सेम कनेक्शन पे लेके जाओगे वो आपका कास्ट कर देगा। जैसे लाइट्स ऑन एंड ऑफ करना मोबाइल डिवाइस से, अभी हुआ ना कि आप ऑफिस में हैं, ऑफिस में से अपना रिमोट ऑन करके एसी ऑन कर दो, आपका जब तक आप घर पहुंचेंगे आपका रूम ठंडा हो जाएगा। वो क्या है, वो आईओटी है, क्योंकि आपके फोन में आपके घर के वाईफाई की डिटेल्स हैं और वो वाईफाई की डिटेल्स आपके ही फोन में इंस्टॉल जो रिमोट का वो एसी का रिमोट है उसको मिल रही है। वो वहां से जाके मैपिंग करता है आपके घर के एसी में और वहां से बिल्डअप करके देता है आपको कनेक्शन। ये आईओटी का एक एग्जाम्पल है। इट इज ऑल्सो वेरी गुड थिंग्स, वेरी गुड थिंग। बहुत चीजें आप ऑटोमेट कर सकते हो, बहुत चीजें आप इंटरनेट पे ला सकते हो इससे। इसमें दो तरह से रहता है, आईओटी हार्डवेयर चाहिए होते हैं, सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर मतलब कि जो आपके सेंसर्स है, माइक्रो कंट्रोलर्स, अगर आपके में से कोई इलेक्ट्रॉनिक्स बैकग्राउंड का है तो उसको चीजें आराम से समझ में आ जाएंगी। सॉफ्टवेयर में आपको पता हो जाएगा आपको डेटा कौन सा कलेक्ट करना है, कैसे डिवाइस को इंटीग्रेट करना है, दो डिवाइस को कैसे जोड़ना है। सी डाटा कलेक्शन, अगेन डेटा साइंस विल बी देयर। आप लोग, यू विल नॉट बिलीव कि अगर जैसे मैं पुणे में रहता हूं तो मुझे जब अपने घर जाना था होम टाउन में, फ्लाइट सर्च करता हूं पुणे से दिल्ली। यू विल नॉट बिलीव आई एम स्टार्टिंग गेटिंग एसएमएस एज वेल कि दिल्ली से पुणे की फ्लाइट इतने की हो गई है। व्हाट दैट इज कंप्लीटली आईओटी। उसने मेरे डाटा को लिया और जाके ऊपर सर्वर पे डाला और वहां से मेरे को मैसेज आने शुरू हो गए। दैट इज एग्जांपल ऑफ द आईओटी पार्ट। कोई डाउट किसी को? नो सर। ऑल फाइन, ऑल क्लियर? ओके। आगे क्या है, Amazon वेब सर्विसेज, अजूरे। सिंपल सी बात है कि सर ये सारा डेटा कहाँ रखना है। आपको पता है आपका जो जीमेल है उसका डेटा कहाँ पर पड़ा है, आपकी जो मेल्स हैं उसका डेटा कहाँ पड़ा हुआ है? एनीबडी हैज एनी आइडिया? आपके फोन पे तो सर्वर। सर्वर कौन सा सर्वर? जीमेल का होता है ना खुद का सर्वर। हाँ तो लेकिन मेरे फोन पे तो नहीं है ना डेटा वो, राइट। मेरे फोन पे तो नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ, अभी पहले क्या होता था, आप जब लैपटॉप लेते थे तो उसमें एक हार्ड ड्राइव होती थी, राइट। अभी भी हार्ड ड्राइव अभी भी होती है डेफिनेटली। लेकिन अब जैसे हम जब ऑफिस में काम करते हैं, आईटी में काम करते हैं, हमें ऑफिस से लैपटॉप मिलता है, राइट। उस लैपटॉप में हार्ड ड्राइव होती है। वो हार्ड ड्राइव बहुत छोटी होती है, अब 100-150 GB, बस इससे ऊपर नहीं देते वो लोग स्पेस। कहते हैं कि आपको जो भी डाटा रखना है आप हमारे क्लाउड पे रखो। उसका बेनिफिट, अब जीमेल है, आपने फोन पे कॉन्फ़िगर किया, आप अपने मोबाइल, आप अपने लैपटॉप पे भी ऑन कर सकते हो, आप किसी और के फोन पे भी जीमेल को कॉन्फ़िगर कर सकते हो। और आपको ऐसा नहीं कि आपको डेटा अपने फोन से कॉपी करना पड़ेगा ना, सीधा आप जहां पे भी ओपन करोगे वहीं पे वो डेटा आ जाएगा। पहले जब फोन आते थे, जब आप कॉन्टैक्ट बनाते थे, सेव करते थे, वो आपके फोन मेमोरी में सेव होते थे। अब फोन मेमोरी में कुछ सेव नहीं होता, अब सारे के सारे आपकी जीमेल आईडी पे सेव होते हैं। क्यों? क्योंकि वहां से आपको एक्सेस करना इजी हो। कल अगर आपका फोन गुम हो जाता है, बंद हो जाता है, तो आप नए डिवाइस पे अपना जीमेल कॉन्फ़िगर करो, आपको सारे अकाउंट्स, कॉन्टैक्ट्स भी वापस मिल जाएंगे, एसएमएस भी वापस मिल जाएंगे आपको। तो Amazon वेब सर्विसेज यहाँ पर एक मेजर रोल प्ले करता है। ये कहता है कि मैं आपको अपना क्लाउड कंप्यूटिंग दूंगा, आप अपना सारा डाटा मेरे क्लाउड पे रखो और मेरी वेब सर्विस के थ्रू उसको कॉल करो और उसको यूज करो। ये कंसेप्ट है मेरा क्लाउड कंप्यूटिंग पे। क्लाउड कंप्यूटिंग भी आज के टाइम में बहुत अच्छा चल रहा है और Amazon वेब सर्विस भी अच्छा है इसके साथ। मतलब ये दोनों कॉम्बिनेशन अगर आप करते हो, यू कैन बिल्ड अ गुड करियर इन दैट।
ठीक है, अब देखो ना, मतलब आज के टाइम में कुछ भी ऐसा नहीं है जो आपके लोकल पे सेव होता हो, सब कुछ आपके इस पे है, क्लाउड पे। वन आपके जो फोटोग्राफ्स है वो भी आपके गूगल ड्राइव में जाती है सीधी। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि कल अगर मुझे डेटा चाहिए होगा तो मैं दोबारा से फोन का बैकअप कहाँ लूंगा, बेटर है कि मैं इसको ड्राइव पे ही रखूँ और वहीं से उठा लूंगा इसको वहां से। ठीक, तो इसमें मेरे सर गूगल का भी और जियो का भी खुद का ड्राइव है ना? सबका है ना, क्योंकि सारे के सारे डाटा कहाँ रखते हैं, क्लाउड पे रखते हैं। किसका कौन सा है ये नहीं पता, लेकिन हाँ, अब जैसे आपने जियो की बात करी, हो सकता है जियो भी अमेजोन का ही लेता हो क्लाउड पीछे, हमें नहीं पता, क्योंकि ये मेरी जरूरत ही नहीं है। मेरे को पता है कि मेरा डाटा सेव होना चाहिए जियो में, दैट्स ऑल। ठीक है, ये चीजें आपको कब पता चलती हैं? जब आप उन कस्टमर्स को, उन क्लाइंट्स को आप सपोर्ट करते हो। ठीक है, ठीक है, अब एक काम करते हैं, यहाँ से डिस्कनेक्ट करते हैं और दोबारा से कॉल ज्वाइन करते हैं और फिर आके जो टॉपिक्स बचे हैं 2-3 वो कवर करते हैं। ठीक है, आ जाओ। I'm ending the meeting. Please rejoin the same link. हाँ, Okay. Recording stopped. कोई बात नहीं बेटा। Recording in progress. रेशमा मुझे एक्सेस देना ये स्क्रीन शेयरिंग का। Yes, sir. Yes, sir. Now you can share. ओके, ठीक है, तो वो चीजें हैं जो हम Amazon वेब सर्विसेज पे या क्लाउड कंप्यूटिंग में चेक कर सकते हैं। ठीक है, अब बारी आती है बिटकॉइन, ब्लॉकचेन की। कोई डाउट है क्या किसी का, कोई क्वेश्चन? अच्छा, ठीक है, ब्लॉकचेन। ब्लॉकचेन जैसे आपको ना, इट्स द नेम इंडिकेट, मतलब जब आप ब्लॉक्स को बना के, ब्लॉक्स को जोड़ के एक चेन बनाते हैं, उसे ब्लॉकचेन कहते हैं। आजकल ये मार्केट में बहुत चलता है। इसके लिए इसको मतलब एग्जांपल है बिटकॉइन, जो डिजिटल करेंसी है या क्रिप्टो करेंसी है, वहां पर ब्लॉकचेन का यूज करके उसको बिल्डअप किया गया है। बहुत लोगों ने इन्वेस्ट किया पैसा इसमें और बहुत लोगों ने अच्छा कमाया भी है, नो डाउट। ठीक है, लेकिन ये काम कैसे करता है यहाँ पे देखते हैं। ठीक है, मान लीजिए मैंने पैसे ट्रांसफर करने हैं रेशमा को 1000 रुपीज, मैं एक ट्रांजेक्शन रेज करता हूं। ठीक है, 1000 रुपीज ट्रांसफर टू रेशमा, उस ट्रांजेक्शन का एक ब्लॉक बन जाएगा। उस ब्लॉक में एक इंफॉर्मेशन होती है। अगर आपने डेटा स्ट्रक्चर पढ़ा हो, आपके अगर क्लासेस में आपके कोर्स में डेटा स्ट्रक्चर का कंसेप्ट हो, तो उसमें कंसेप्ट आता है हैश। वो हैश मतलब वो हैश को यूज करके उन्होंने ब्लॉकचेन को बिल्डअप किया। मतलब हैश एक अल्फान्यूमेरिक नंबर होता है, अल्फान्यूमेरिक होता है, जो बेसिकली कुछ प्रेजेंट करता है, जिसको इनक्रिप्ट करना, जिसको डिकोड करना टफ रहता है। तो हर ट्रांजेक्शन के साथ एक हैश ऐड हो जाता है और जितने भी पैरामीटर से वो निकलता है। मान लीजिए मैंने बोला कि मैंने को यहाँ से ट्रांसफर करना है 1000 रुपए रेशमा के अकाउंट में। ठीक है, तो पहले वो 1000 रुपए मेरे अकाउंट से निकलेंगे, मेरे बैंक के पास जाएंगे, मतलब वो ट्रांजेक्शन मेरे बैंक के पास जाएगी, मेरे बैंक से निकल के वो आरबीआई के पास जाएंगे, आरबीआई से निकल के वो रेशमा के बैंक में जाएंगे, रेशमा के बैंक से निकल के रेशमा के अकाउंट में जाएंगे। तो ये 5 ट्रैवर्सिंग यहाँ पर हुई। तो पांचों के पांचों जगह पर एक नया हैश कोड उसको मिलता जाएगा और पिछला हैश कोड रिप्लेस होता जाएगा। इस हैश को ब्रेक करना, एनक्रिप्ट करना डिफिकल्ट है, इसीलिए क्रिप्टो करेंसी को मतलब कि हैक करना इज लिटिल टफ पार्ट। ठीक है, और यहां से देखो जैसे बनता रहता है, वो नोट्स ऐड होते जाते हैं एक करके। जैसे मैंने यहाँ से मैंने यहाँ से रिक्वेस्ट किया, मेरे बैंक के पास गया, तो वहां से एक हैश होगा, तो उस ट्रांजेक्शन के साथ मेरे बैंक का हैश कोड ऐड हो जाएगा। फिर उस हैश कोड के साथ आरबीआई का हैश कोड ऐड हो जाएगा, उस आरबीआई के कोड के हैश के साथ रेशमा के बैंक का हैश कोड हो जाएगा, उसके साथ फिर रेशमा का अकाउंट हैश हो जाएगा और फिर यहाँ पे वो
कॉरस्पॉन्डली डिलीवर हो जाएगा। मतलब कि जो इसमें जैसे अगर आप पढ़ेंगे डाटा स्ट्रक्चर में जो कंसेप्ट है हैश टैग का, हैश टैग नहीं बोलूंगा, हैश का एक कंसेप्ट आता है, उसके बेस पर ये सारा काम चलता है। अगर आप एक स्लाइड पीछे चलते हैं, यहाँ देखोगे आप, ब्लॉकचेन इज अ टाइप ऑफ डायरी और स्प्रेड शीट कंटेनिंग इन्फॉर्मेशन अबाउट द ट्रांजेक्शन। मतलब उस हैश कोड में ही देखो, जैसे है ना ये वाला, इस हैश कोड में सब कुछ लिखा हुआ है, लेकिन समझना मुश्किल है इसको। ईच ट्रांजेक्शन जनरेट ए हैश। अ हैश इज a string of number and letters। देखो ऐसे ये नंबर रहता है, ठीक है। ट्रांजेक्शन आर एंटर्ड इन ए ऑर्डर विच दे अकर्ड। मतलब कि किस सीक्वेंस में वो ट्रांजेक्शन जाएगा, उसी सीक्वेंस में वो हैशटैग बनते चले जाते हैं और एक एक करके जाते हैं। और देखो यहाँ पे ब्लॉकचेन अपडेट इटसेल्फ कि हर 10 मिनट के बाद वो नया हैशटैग नया हैश उसको देता रहता है, ताकि कोई भी हैकर पुराने उसको लेके या नए उसको लेके एनक्रिप्ट ना कर सके, उसको पता नहीं चले कि नया कौन सा और पुराना कौन सा है, ठीक है। तो ये कंसेप्ट मेरा रहता है ब्लॉकचेन में। अच्छी टेक्नोलॉजी है, लेकिन आजकल मार्केट में इतना मैंने नहीं सुना, एटलीस्ट मैं अपने साइड से बोल सकता हूँ, लेकिन टेक्नोलॉजी अच्छी है। बट इसके लिए जरूरी है कि आपको डेटा स्ट्रक्चर में जो हैश यूज होता है वो पता होना चाहिए, उसके बिना काम नहीं होगा यहाँ पे, क्योंकि पूरा एल्गोरिथम आपको डिजाइन करना है, सबसे बड़ी बात, ठीक है। अजाइल, अच्छा यहां तक किसी को कोई डाउट, कोई क्वेश्चन, कोई क्लैरिफिकेशन? बताओ भाई, किसी को डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो? नो सर। ऑल क्लियर सबको, ऑल फाइन? यस सर। ओके। अब बेसिकली क्या है अजाइल? क्या है अजाइल? मेरा काम करने का तरीका है। जैसे अगर मैं बोलूं, आपका जब सेशन शुरू होता है तो आपके टीचर्स का एक टारगेट होता है कि मुझे 2 वीक में इतना सिलेबस पूरा करना है, मुझे 2 वीक में इतना सिलेबस पूरा करना है, मुझे 4 महीने में इतना सिलेबस कवर करना है। तो उसे हम क्या कहते हैं, जो उनको सिलेबस कवर करना है उसको हम कहते हैं प्रोडक्ट बैकलॉग। इसके बेस पर ये क्या बनाते हैं, इसके बेस पर ये छोटी छोटी स्टोरीज बनाते हैं कि भाई 2 वीक में मुझे कितना काम करना है। और जो 2 वीक वाला कंसेप्ट है उसे हम कहते हैं स्प्रिंट। ये प्योर थ्योरेटिकल कंसेप्ट है, इजी टू अंडरस्टैंड एंड यू विल लव टू अंडरस्टैंड दिस पार्ट, ठीक है। तो ये 2 वीक आपको पढ़ाएंगे और 2 वीक के बाद आपसे टेस्ट ले लेंगे अगले दिन, अच्छा बताओ भाई क्या पढ़ा आपने, और एश्योर कर देंगे कि हाँ भाई हमारे स्टूडेंट्स को इतना सिलेबस तो रेडी होता है। फिर अगले 2 वीक आपको नया पढ़ाएंगे, फिर यहाँ लेके जाएंगे, पढ़ाएंगे आपको, फिर आपसे पूछते भी हैं, जैसे मान ली टेस्ट के बाद पूछेंगे अच्छा बताओ इस 2 हफ्ते में क्या सही रहा, आप बोलोगे मैडम बहुत स्पीड से पढ़ाया, टॉपिक बहुत बड़ा था, टाइम नहीं लग रहा था, बिजी भी थे हम, ये सब चीजें। तो वो क्या होता है, वो रेट्रोस्पेक्टिव होता है, उसका इनपुट लेते हैं, अच्छा भाई क्या गलत रहा, क्या सही रहा, क्या अच्छा रहा, वो सब चीजें। तो ये बेसिकली आपको यूज होगा, लेकिन अभी नहीं। इसका नॉलेज आपको होना चाहिए, आप थोड़ा सा पढ़ लो इसके बारे में, किसी भी वेबसाइट से थोड़ा बहुत पढ़ लो, दैट वर्क फॉर यू, ठीक है। बट इस पे अभी काम नहीं करेंगे क्योंकि अभी आप फ्रेशर हैं, तो आप ट्राई करिए कि आपको डेवलपमेंट में या किसी और टेक्निकल प्रोफाइल में ही जाने का मौका मिले, ठीक है। इसे मैं स्किप करता हूं, इट्स नॉट मच रिक्वायर्ड। यस, नाउ आई रीच अप टू द एंड ऑफ माई स्लाइड्स हियर। किसी का कोई क्वेश्चन आंसर, कोई पॉइंट, कोई फीडबैक हो, पूछ सकता है ओपनली। तो क्रिप्टो करेंसी के वैल्यूज अप डाउन कैसे होते हैं? नो आइडिया बॉस, ये डाटा माइनिंग कैसे होता है, ये अपडेट कैसे होते हैं, कोई आइडिया नहीं इसका। ये कौन सा टेक्नोलॉजी बैकग्राउंड में चल रहा है, इतना है कि ब्लॉकचेन पे काम करता है, बट कैसे अपडेट करता है नो आइडिया, बैकएंड लॉजिक नहीं आइडिया मुझे बिल्कुल भी। बताइए कोई और पॉइंट। हाँ हेलो सर। हाँ बोलिए। आशीष हियर। हाँ हेलो सर। मैंने आज से पहले एज अ ग्राफिक डिजाइनर जॉब किया था, अभी मास्टर्स भी कर रहे हैं, तो जावा का वगैरह बहुत अच्छा नॉलेज है। ओके। तो मैं चाहता हूँ कि आगे जाके मैं एज ए जावा डेवलपर जॉब करूँ। और जैसे
स्टार्टिंग जॉब वगैरह हो जाता है, उसके बाद एज ए फुल स्टैक डेवलपर। ओके, तो स्टार्टिंग में एज ए जावा डेवलपर, तो क्या क्या मतलब कौन कौन से टूल्स वगैरह आना जरूरी है उसमें? एंगुलर वगैरह एज ए फ्रेशर्स पूछते हैं। देखो यार, फ्रेशर्स को बहुत चीजें पूछते हैं आज के टाइम में। जावा आप सिर्फ एक कह रहे हो, Yes, लेकिन अगर आप जावा में अच्छे स्ट्रांग हो तो आप इजिली जावा Yes, में sir. अपना करियर बिल्ड कर सकते हो। ठीक है, हाँ ये है कि अगर इसके साथ आपको कुछ एंगुलर जेएस वगैरह आती है वो अच्छा है। प्लस जैसे मैंने बोला था अपनी स्लाइड नंबर 1 में, कहाँ गया ये डेवऑप्स वाला हमारा, ये अगर आप इसमें से कुछ टूल्स पिकअप कर सकते हो, ये आपके लिए इजी रहेगा काम अपने करियर को बढ़ाने के लिए। क्योंकि फुल स्टैक का मतलब ही होता है कि आपको कोडिंग से लेकर रिलीज करने तक सब पता होना चाहिए आपको। इसके लिए ये पर्पस रहता है मेरा। ठीक है, तो जैसे इसमें आपने जावा में कोड लिखा, कहाँ कमिट करना है, गिट में कैसे उसको बिल्ड करना है, मैवन में करना है या एसपीटी में करना है, उसको डिप्लॉय कैसे करना है, तो ये चीजें आपके लिए अच्छी रहेंगी। मतलब आप फुल स्टैक में जा रहे हो तो आप डेवऑप्स की टेक्नोलॉजी को साथ में पिकअप करो और इजिली उसको ले सकते हो अपने साथ आगे काम करने के लिए। यस सर। और जब तक हम लोग ये सब कुछ प्रिपेयर करते हैं तब तक और एक वर्जन आ जाता है सर मार्केट में, कि वो अपडेट हो जाते हैं। या देखो वर्जन्स तो चलते ही रहते हैं। वर्जन्स का तो आप कभी कह सकते, अब जैसे एंगुलर 1 था, 2, 3, 4, 5, 18, 12, आई गेस 13, 14 तक पहुंच गए जहां तक मुझे आइडिया है। ठीक है, तो वो तो अपग्रेड आपको करना ही पड़ेगा अपने साथ साथ, लेकिन एटलीस्ट आप किसी एक में बेस रखो और उसके बाद अपने आप को अपग्रेड आपको करना ही पड़ेगा कि भाई नए वर्जन में क्या चीजें नहीं आई है, मुझे क्या चीज सीखनी है। और जैसे मैं अपने टूल की बात करता हूँ सर्विस नाउ की, ठीक है, सर्विस नाउ का अभी एक रिलीज आया, ठीक, तो मुझे अपने आप को अपडेट करने के लिए मुझे उसको पढ़ना पड़ा कि उसमें क्या नया है, तभी मैं अपडेट कर पाऊंगा। अदरवाइज आप एक बार छोड़ोगे, 2 बार छोड़ोगे, लेकिन तीसरी बार आपको दुनिया छोड़ देगी, नहीं इसको नहीं आता क्योंकि पुराने वर्जन पे काम करता है। तो अपग्रेड तो आपको कंटिन्यूसली आपको अपने आप को करना ही पड़ेगा कैसे भी करके। यस सर, यस सर, थैंक्स सर। यस सर, थैंक्स सर। कोई और क्वेश्चन किसी का? यस सर। विजुअल स्टूडियो की कितनी वैल्यू है सर मार्केट में आज? विजुअल स्टूडियो की? हाँ यार देखो, वैल्यू मुझे नहीं पता, लेकिन विजुअल स्टूडियो मेरे को सबसे बेस्ट लगता है। VC++ की बात करो, जिसमें जो कंप्यूटर को डिजाइन करने के लिए लिखा जाता है, राइट? यस सर। हाँ हाँ, उसकी देखो VC++ से पहले C और C++ की भी डिमांड है आज के टाइम में मार्केट में, ऐसा नहीं है। मैं आपको बताता हूँ क्लियरली है, क्योंकि हमारी कंपनी में भी कई बार ओपनिंग्स रहती हैं, लेकिन एक्सपीरियंस के लिए कि हाँ भाई कितना एक्सपीरियंस है और उसके ऊपर आपको कैसे काम करना है। ठीक है, तो डेफिनेटली विजुअल स्टूडियो की है, लेकिन उसके लिए उससे पहले आपको अपना C और C++ का बेस रेडी करना पड़ेगा कि आपको वो आना चाहिए। वो ज्यादा जरूरी चीज है आपके लिए। ठीक है, तभी वो चीजें आपको बेनिफिट दे पाएंगी, अदरवाइज ऐसा बेनिफिट नहीं होगा। क्योंकि नो डाउट आज भी C++ की ओपनिंग्स चलती है मार्केट में। कई चीजें ऐसी हैं जो इसके अलावा किसी लैंग्वेज में नहीं लिखी जाती, राइट? यस सर। तो इसलिए तो है, बेनिफिट है, बट बेस अपना रखो C और C++ के ऊपर ज्यादा। ओके सर, थैंक यू। और कोई क्वेश्चन? हाँ बोलिए दोस्त। सर जैसे कि आपने बहुत सारी टेक्नोलॉजी बताई, ऐसी बहुत सारी टेक्नोलॉजी मार्केट में है, तो जब हम सीखने जाते हैं तो हर टेक्नोलॉजी इंटरेस्टिंग लगती है कि ये सीख लो या वो सीख लो, हर इसमें इंटरेस्ट बढ़ता है। तो ऐसा क्या किया जाए कि एक ही टेक्नोलॉजी पे फोकस हो? नहीं, देखो आज का जो टाइम है ना यार, आज का टाइम बहुत चेंज हो गया। ठीक है, पहले आज से 5 साल 8 साल पहले चलता था कि भाई आपने जावा सीख ली, आपका काम हो गया, आपकी जिंदगी बन गई। नहीं, ऐसा नहीं है। आज के टाइम में आपको हर टेक्नोलॉजी का कुछ ना कुछ आना चाहिए थोड़ा सा, या फिर ऐसा रखो कि जो एक सीखो उस पर इतना कमांड हो जाए कि आपसे ऊपर कोई ना हो उसमें। जैसे आपने अजूर सीख लिया, या डेवऑप्स में काम कर रहे हो, या आप ब्लॉकचेन में काम कर रहे हो, IoT में काम कर रहे हो, तो फिर उसमें पूरा एंड टू एंड आपको पता होना चाहिए। ये नहीं कि अगर मैं पूछूं भाई अच्छा बताओ ब्लॉकचेन में ये कैसे होगा, नहीं सर ये तो नहीं मुझे पता, इसका मतलब आपने वो टेक्नोलॉजी पूरी पढ़ी ही नहीं है अभी तक। तो वो चीजें, और एक चीज और मैं रिकमेंड करता हूँ अपने स्टूडेंट्स को बेसिकली, कि जब भी आपको कोई भी नया टेक्नोलॉजी सीखना है तो ऐसा नहीं होता कि चलो इसको सीखना शुरू करते हैं, ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। आपके माइंड में 3, 4 या 5 टेक्नोलॉजीज हैं, आप पहले उन टेक्नोलॉजीज के बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़िए अपने एंड पे।
हर टेक्नोलॉजी के बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़िए और फिर देखिए कि आपकी गट फीलिंग्स क्या कहते हैं कि हाँ भाई मैं इसमें करियर बना सकता हूँ अपना, तो आप उस टेक्नोलॉजी को बेस लेके और उसमें अपना करियर बिल्ड करने का ट्राई कर सकते हैं फिर। ठीक है, थैंक यू सर। सर ऐसे भी बोलते हैं ना, जो एक ही सब्जेक्ट ले, एक ही कोई लैंग्वेज ले लो और वही आगे कंटिन्यू करो, ऐसा वो अब नहीं है यार, वो पहले होता था, अब नहीं है। अब मान लीजिए आप आज जावा सीख रहे हैं, कल बोलेंगे नहीं हमें जावा के साथ C++ भी आनी चाहिए, तो आप क्या करोगे? मैं नहीं सीखूंगा, आपको सीखना पड़ेगा, मजबूरी हो जाती है फिर वो हमारी। इसलिए मैंने कहा ना कि आप जैसे फ्रेशर हैं, आप ये फ्रेशर हैं तो आप किसी एक टेक्नोलॉजी या किसी एक डोमेन को लेके अपना करियर स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन जैसे जैसे आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा आप खुद सोचेंगे नहीं यार थोड़ा सा और नया सीखता हूँ, कुछ और टेक्नोलॉजी भी पिकअप करते हैं, साथ में काम करते हैं, क्योंकि उसकी भी जॉब्स हैं मार्केट में, राइट? नहीं तो सिर्फ 10th पास करने के बाद अगर काम खत्म होता तो ठीक था ना, फिर क्यों ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन करते हैं? ताकि आपको कुछ नया सीखने को मिले, वो चीजें रहती हैं यहाँ पे। और कोई डाउट, किसी कोई क्वेश्चन हो, कोई क्लैरिफिकेशन हो? स्टार्ट कहाँ से करें? स्टार्ट जो मन करे यार वहां से स्टार्ट करो। मैं कौन से टेक्नोलॉजी को फर्स्ट मैंने प्रेफर करूं? मैंने अभी तो इजी जाए बिगिनर के नहीं लिए। नहीं 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 मैंने अभी तो बोला ना आपको ये चीज कि जिस टेक्नोलॉजी में आपका इंटरेस्ट बनता है, आप देखो कि आपको कौन कौन सी अच्छी लगती है, उनके बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ो और फिर उनको यूज करो। ये ऐसे ही काम होगा, ये ऐसे काम नहीं होता कि हाँ भाई चलो अतुल सर ने बोला शुरू कर देना, नहीं ऐसे काम नहीं होता। ये आपका इंटरेस्ट है, आपका डोमेन है, आपका करियर है, ये आपको देखना है। ठीक है, किसी और का कोई क्वेश्चन और क्लैरिफिकेशन किसी का हो, कुछ रिक्वायरमेंट हो? ठीक है, सो मैंने अपना लिंक्डइन आईडी आपके लिए यहाँ डाला है चैट में, आप पिकअप कर सकते हैं। और मैं अपना यूट्यूब चैनल भी करता हूँ जहाँ पर आपको रिकॉर्डिंग्स वगैरह मिल सकते हैं दोबारा से, तो आप मुझे वहाँ पे भी कनेक्ट कर सकते हैं। किसी का कोई डाउट हो, क्वेश्चन हो, कभी भी हो, मुझे लिंक्डइन पे पिंग कर दीजिए, आई डेफिनेटली रिस्पॉन्ड बैक टू यू। ठीक है, ओके सर। ओके। ओके सर। और इफ यू कैन ज्वाइन मी ऑन द Yes, लिंक्डइन sir. बाय नेक्स्ट 1 hour or 2 hour, दैट विल बी गुड, सो दैट जब मैं ये पोस्ट लिंक्डइन पे डालूंगा मैं आपको टैग भी कर सकता हूँ उसमें फिर। ठीक है, ये मेरा लिंक्डइन आईडी है, मैं एक बार दोबारा से पिंग कर देता हूँ आपको डायरेक्ट लिंक मिल जाएगा तो उसमें इजी रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप रिक्वेस्ट भेज दीजिए। और एनीथिंग एल्स रेशमा यू वांट मी टू बी डिस्कस हियर, बिकॉज आई एम डन फ्रॉम माय साइड। No, sir. Any students having any doubt can ask, sir. कोई फीडबैक हो किसी का, और या कुछ इश्यू और हो, कोई क्वेश्चन हो? If anyone wants to know something more, ठीक है, तो किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है, लेट मी स्टॉप द शेयरिंग हियर। ठीक है, ओके, सो गाइस सी यू सून ऑन द लिंक्डइन। ठीक है, sir, Neha is asking something. यस यस प्लीज गो Yes, अहेड। Neha. मेरा नेटवर्किंग में ज़्यादा इंटरेस्ट है, गुड, सो मैंने रिसेंटली CCNA भी किया है, वेरी गुड। तो और मेरे नेटवर्किंग के इंटरेस्ट को और कैसे बढ़ाऊँ मैं, उसमें ज़्यादा स्ट्रॉन्ग साइबर कमांड कैसे? साइबर सिक्योरिटी के कोर्सेज को चेक कर सकते हो आप, दैट इज गुड। मैंने अभी एडवांस कोर्स भी लगाए हैं, उसमें एडवांस राउटिंग, स्विचिंग, साइबर सिक्योरिटी, बस नेटवर्क सिक्योरिटी बस 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 और it CCNP, PCI। it is more than enough as of now for you as a fresher। अब आपको चाहिए कि इसके बेस पर आपको जॉब मिले, ताकि आप जो सीख रहे हैं उसको इम्प्लीमेंट कर पाए, और जब आप इम्प्लीमेंट करते हैं तब आपको और नॉलेज मिलना शुरू होता है साथ में। सर ये राइट वे किया ना मैंने? नहीं, ठीक है, एडवांस एग्जैक्टली ये सही है। अब आप ट्राई करो कि आपको जॉब मिल जाए इस एरिया में, सो दैट यू कैन ग्रो मोर इन दिस फील्ड नाउ। ओके 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 सर, थैंक यू। Vijay wants to ask something, sir. यस प्लीज। Yes, Vijay. मैम ऐसा सर, ऐसा जरूरत तो नहीं तो एक ही लैंग्वेज करके पूरा कंटिन्यू कर ले, अलग अलग लैंग्वेज सीख के कर सकते हो जॉब कर सकते हो राइट इन फ्यूचर। यस यस यस, आप जितना लैंग्वेज आप सीख सकते हो, जितना अच्छा आप सीख सकते हो वो आप सीखो और आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं उसमें।
सर मेरा एक और क्वेश्चन है। हाँ बोलिए ना। सर इंग्लिश कम्युनिकेशन सबके लिए एक बैरियर है आजकल के जमाने में। सबके पास नॉलेज है बट वो एक्सप्रेस नहीं कर पाते इंटरव्यू में। तो सर इसके ऊपर आप कुछ एडवाइस दे सकते हैं क्या, किस तरीके से हम स्ट्रांगली इंग्लिश कम्युनिकेशन अच्छा हो सकता है, या ओके उसके लिए क्या करना चाहिए, राइट वे क्या है? ओके, देखो, अगर अगर मैं स्टैंडर्ड्स बात करूं तो वही है कि भाई इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ा करो, इंग्लिश न्यूज़ सुना करो और ये सब चीज़ें हैं, ठीक है। लेकिन ये चीज़ें एक्चुअली में बोलते हैं, जो करते हैं एक्चुअली उनको उनको दिखता भी रिजल्ट्स, लेकिन जब तक नहीं करोगे तब तक रिजल्ट्स नहीं दिखेगा। ओके, और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि इंग्लिश डेफिनेटली रिक्वायर्ड है। मैं ये नहीं कहूंगा कि मस्ट है, रिक्वायर्ड है आपको एंट्री करने के लिए। मैं आई एम हैप्पी अगर मेरे साथ कोई हिंदी में बात कर रहा है, आई एम हैप्पी, लेकिन हाँ वो मेरा काम कर सकता है, वो मेरे कस्टमर के साथ बात कर सकता है, तो वो क्योंकि इंग्लिश इसलिए रिक्वायर्ड है, आपके जो कस्टमर्स हैं, आपके जो क्लाइंट जिसको आप काम करोगे जिनके लिए, उनको हिंदी नहीं आती होगी। तो इसका बेस्ट यही रहता है कि ट्राई करिए कि आप दिन में एक स्मॉल इंग्लिश वीडियो आप सुने, कोई मूवी आप डाउनलोड कर लो, उसके नीचे सबटाइटल रखो और उसके इंग्लिश को साथ में सुनते रहो, उसकी मूवीज को देखते रहो। ज्यादा नहीं, मैं नहीं कहता कि दिन भर 4-5 घंटे करो ना, 15-20 मिनट भी अगर आपने कर लिया दैट इज मोर देन एनफ। ट्राई करो कि जब आप बात करो किसी से फोन पे तो इंग्लिश में बात करना शुरू करो। और सबसे बेस्ट पार्ट, अपना फोन लो और टॉक टू गूगल और सीरी और अलेक्सा इन इंग्लिश। गूगल में, वो फोन में गूगल होता है राइट, उससे इंग्लिश में बात करना बात शुरू करो। वो देखो आपको थोड़ा सा और इजी रहेगा, क्योंकि वो आपकी बेइज्जती नहीं कर सकती, वो आपकी बात को सुनेगी, समझेगी, और आप उससे वैसे बात करो जो आपको करवाना है उससे। सो ये कुछ तरीके हैं जिससे आप इम्प्रूव कर सकते हो। ओके सर। ठीक है, लेकिन हाँ इंग्लिश इज रिक्वायर्ड, मस्ट नहीं है बट रिक्वायर्ड है। हाँ सर। ठीक है, वो चीज है। ओके, थैंक यू रेशमा सो मच फॉर योर टाइम एंड गिविंग मी अपॉर्चुनिटी वंस अगेन। ठीक है, थैंक यू so गाइस, much. थैंक यू। यू कैन कनेक्ट मी ऑन द यूट्यूब और द लिंक्डइन। ओके, थैंक यू सर। एंड स्टे सेफ गाइस, बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू सर। Thank you थैंक so यू much, सर। sir, बाय। for your valuable guidance, sir. Thank you so much. थैंक्स रेशमा। चलिए सामान लेने